आज हमारा टॉपिक जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले वो है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. वी विल try to look why it is called so, because we have just got two names that mean exactly the same. It is called major histocompatibility complex. Major, it means something important. Histo means tissue. Compatibility means something, if the tissue is compatible in someone else or not. So major histocompatibility complex is something that is important during the transplantation. It is really important during transplantation. And human leukocyte antigen और MHC is something जो कि चेक करना पड़ता है किसी भी ट्रांसप्लांटेशन के पहले. Why it is called human leukocyte antigen? The reason it is called human leukocyte antigen is nothing but ये पहली बार ल्यूकोसाइट्स में डिस्कवर किया गया था, उसको कारण इसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं. ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ जीन that are responsible for the tissue rejection. This is what the definition says in the pathology book like Robbins. Now if we will look at the function of the human leukocyte antigen or the major histocompatibility complex, then it helps in the representation of the antigen. And this antigen is a peptide antigen that have to be we have to be very specific about this. ये peptide antigen को ही represent करता है. एंटीजन जो है लिपिड भी हो सकता है, एंटीजन जो है वो पॉलीशेराइड भी हो सकता है, लेकिन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो केवल प्रोटीन मतलब पेप्टाइड एंटीजन्स को ही रिप्रेजेंट करता है. अगर हम जैसे कि एक बेसिक नॉलेज इसके पहले रहना चाहिए कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो टी सेल रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करेगा, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टी सेल है जो कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा और MHC पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करेगा, तो टी सेल जो है वो पेप्टाइड द्वारा ही एक्टिवेट होगा. जो मेन ग्रुप है टी सेल का, जिसको प्रिसाइसली अल्फा बीटा टाइप ऑफ टी सेल कहा जाता है, वो इस पेप्टाइड से एक्टिवेट होता है. अदर टाइप का टी सेल भी होता है जो कि डायरेक्टली लिपिड से या पॉलीशेराइड से एक्टिवेट होता है, लेकिन वो बहुत उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. So we already talked about function to display the fragment of protein antigen but not polysaccharide or lipid, because polysaccharide or lipid is something that will be seen by other type of T cell. It is written in the Robbins, we can refer to it. The protein antigen is something that will be seen by alpha beta type of T cell. It is written that it forms about 95% of the T cell population, and this polysaccharide and lipid sensing T cell will be by the gamma delta type of T cell. It is called gamma delta T cell, about 5% population, not that much important. Now if we will look at the category of the major histocompatibility complex, then it is divided into two: major histocompatibility complex 1 and major histocompatibility complex 2. What is major histocompatibility complex 1? Definition is something that is really important and we have to look at the definition. Major histocompatibility complex 1 is displayed in each and every nucleated cell of the body. Each and every nucleated cell of the body including platelets. तो ये प्लेटलेट्स के ऊपर भी होगा और सारे न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर भी होगा. और ये जो होता है स्टेटस के तरह होता है. लाइक इन व्हाट्सएप वी हैव द स्टेटस ना, इट इज़ लाइक दैट कि सेल के अंदर क्या चल रहा है वो रिप्रेजेंट करता है MHC1. एक सेल लगातार अपने अंदर जो पेप्टाइड्स है वो इससे लिंक करके रिप्रेजेंट करता रहता है. देन वी हैव MHC2. MHC2 इज समथिंग दैट इज रेस्ट्रिक्टेड. It is present only in antigen presenting cell, or we can say the professional antigen presenting cell. The professional antigen presenting cell basically include three cells: the B lymphocytes, the macrophages and the dendritic cell. There are some non-professional antigen presenting cells also. So professional कौन सा था? ये वाला B lymphocyte, macrophages and the dendritic cell. ये professional वाला. याद रख सकते हैं नॉन प्रोफेशनल वाला भी. नॉन प्रोफेशनल वाले में आता है फाइब्रोब्लास्ट, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, फाइब्रोब्लास्ट, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड माइक्रोग्लिया सेल.
और ये तभी, ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन में रिप्रेजेंट करते हैं अपने एंटीजन, हमेशा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. नाउ there is also difference in the type of antigen that is represented by MHC1 and that is represented by MHC2. Here we have said endogenous antigen and exogenous antigen. In order to know, पहले पता रहना चाहिए कि endogenous क्या है और exogenous क्या है. Suppose that a virus entered into the cell, or suppose that the cell has converted into a tumor cell. Then it will start producing abnormal peptide, and those abnormal peptides, abnormal proteins are first produced inside the cell. Then it is called the endogenous one. You got the point? Like virus is coming from outside, but it is still forming something endogenous peptide because it is entering the cell and forming the peptide for the first time inside the cell. Then we have the exogenous one. Exogenous one मतलब वो प्रोटीन बाहर बना है, सेल उसको इनगल्फ करेगा और फिर रिप्रेजेंट करेगा, तो हम उसको एक्सोजीनस कहते हैं. तो इंडोजीनस और एक्सोजीनस का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर रहना चाहिए. अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से MHC1 रिप्रेजेंट करता है एंटीजन को, किस प्रकार से MHC2 रिप्रेजेंट करता है. सो वी आर लुकिंग एट द मैकेनिज्म ऑफ इंडोजीनस एंटीजन प्रेजेंटेशन, जिसको साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस भी कहते हैं. सबसे पहले मान लेते हैं कि वो वायरस था और वो वायरस अपना कोई सा कैप्सिड प्रोटीन बना है, कैप्सोमियर बना है. वो जो कैप्सोमियर होगा दैट विल बी डिग्रेडेड, and that degradation is done by the proteasomal degradation that will result in small fragments of protein. So the protein undergoes proteasomal degradation that forms small fragment. These fragments are in the cytoplasm. Then they are transferred to the endoplasmic reticulum. Inside the endoplasmic reticulum, MHC complex is being synthesized. We know that rough endoplasmic reticulum have the ribosomes that are attached to it. So वहाँ बन रहा है MHC1, वहाँ MHC1 उससे जुड़ जाएगा. MHC1 वहाँ पे जुड़ गया. उसके बाद सबको जनरल सीक्वेंस आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस एंड सेल सरफेस. गोल्गी एपेरेटस पे किसी भी प्रोटीन के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस ट्रांसफर होते हैं जो कि डिटरमाइन करता है कि वो सेल के सर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाएगा, एक्सोसाइटोज हो जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो गोल्गी एपेरेटस में भी जाएगा. अगर हम देखेंगे एक्सोजीनस एंटीजन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय MHC2, तो इसका कहानी कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को मैक्रोफेज इनगल्फ कर लेगा. ये इनगल्फ कैसे करेगा हम उसको भी देख सकते हैं. लेट अस सपोज कि एक यहाँ मैक्रोफेज है, यहाँ मैक्रोफेज है, ये एक मैक्रोफेज. मैक्रोफेज के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं मैनोज रिसेप्टर. इट इज़ वन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि इसी से होता है. मैनोज रिसेप्टर, ये जो मैनोज रिसेप्टर होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जो पॉलीशेराइड रेसिड्यूज होता है उसके मैनोज से बाइंड करता है. दिस M स्टैंड्स फॉर मैनोज, ये यहाँ मैनोज से बाइंड कर देता है. कहने का मतलब है कि अगर ये बैक्टीरिया के सेल वॉल पे कोई सा ग्लाइकोप्रोटीन है, दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, सपोज इट इज ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें कि ये प्रोटीन है और ये पॉलीशेराइड है, तो इसका जो टर्मिनल होता है ना, ये टर्मिनल, इस टर्मिनल पे मैनोज होता है, इससे ये बाइंड करता है और इसको इनगल्फ कर लेता है. ठीक है, इस तरह से इनगल्फ कर लेता है. ठीक है, जब इनगल्फ करेगा इट इज इंडोसाइटोस, इट विल बी प्रेजेंट इनसाइड अ वेसाइकल, ये एक वेसाइकल के अंदर होगा. तो प्रोटीन इज एंडोसाइटोस्ड, लाइसोसोम फ्यूजेस विद टू फॉर्म दिस इज नॉट पॉलीलाइसोसोम, दिस इज फेगोलाइसोसोम, phagolysosome. Then antigen is broken down into a small peptide that will be represented. अब समस्या है कि अगर हम मान ले कि ये मैक्रोफेज था, लेट मी क्लियर दिस विल बी हेल्पफुल. मान लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये फेगोलाइसोसोम है जिसके अंदर एंटीजन है, ये एंटीजन है. वी आर इन विच स्टेप? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप. ये वाला जो स्टेप है ना, केवल इसका फोटो बना रहा है, तो ये एंटीजन यहाँ पे है. लेकिन MHC तो यहाँ पे बनेगा, MHC
MHC बेचारा तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इसको बाइंड तो यहाँ करना है। तो ये MHC इधर से इधर ट्रांसपोर्ट किया रहता है, ये MHC यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया रहेगा। ये कौन सा MHC? MHC2 है, ठीक है। डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। सवाल उठता है कि अगर MHC2 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसा हम देखे थे कि इंडोजीनस एंटीजन भी जा रहा था, तो क्यों MHC2 से इंडोजीनस एंटीजन नहीं जोड़ा? ये सवाल उठता है। इसका एक जवाब ये है कि यहाँ पर MHC1 पे एक एडिशनल पेप्टाइड पहले से जुड़ा होता है जिसको इनवेरिएंट चेन कहते हैं। इसको बोलते हैं इनवेरिएंट चेन। ये इनवेरिएंट चेन बाद में रिमूव हो जाता है जब ये फेगोलाइसोसोम के अंदर रहता है और वो साइट खाली छूट जाता है जिससे एंटीजन बाइंड कर सके। एक बार एंटीजन बाइंड कर जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये है किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, MHC1 कैसे रिप्रेजेंट करता है और MHC2 किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। MHC को HLA भी कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस भी कहते हैं। एक्चुअली इसका जो जीन होता है ना, उसका नाम HLA दिया जाता है, HLA जीन्स होता है, HLA जीन्स। सो HLA टर्म जो है हम प्रोटीन के लिए कर सकते हैं यूज़, लेकिन जीन्स के लिए यूज़ होता है। और जब वो एक्सप्रेस होता है ना यहाँ पे, तो हम MHC टर्म यूज़ करते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, बल्कि है वो सेम ही चीज़, ठीक है। इस फोटो में हम देख सकते हैं, इसमें दोनों HLAs के बारे में दिया है। दिस इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। Structure of major histocompatibility complex is really important to be seen. If we will look at the structure of major histocompatibility complex 1, that is coded by 3 genes that are present on the chromosome number 6. These are called HLA-A, HLA-B and HLA-C, coded by HLA, HLA-B, HLA-C। इसमें थोड़ा देखते हैं कि जैसे HLA-A, B और C में जो A है इसको आइसोटाइप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आइसोटाइप, दिस इज कॉल्ड आइसोटाइप। बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा HLA-B27, बहुत खास चीज़ है, ठीक है। तो ये B आइसोटाइप है और ये 27 पॉलीमॉर्फिक टाइप है। There is a new term that is called polymorphic। ये जानना पहले से बहुत ज़रूरी है सारे चीज़ को समझने के लिए। Polymorphism is a phenomena that is characterized by genetic variation in a population. So, polymorphism implies genetic variation in population। एक सवाल पूछते हैं, मेरे में इंसुलिन का जो अमीनो एसिड है उसका जो सीक्वेंस है और आपके में जो इंसुलिन है उसमें अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, क्या वो एग्जैक्टली सेम है? जवाब है हाँ, दोनों का सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है, 100% वो सेम होता है। दैट इज़ नॉट पॉलीमॉर्फिज्म। सपोज मेरे अंदर कोई सा प्रोटीन बन रहा है जिसका अमीनो एसिड थोड़ा सा अलग है आपके अंदर जो प्रोटीन बन रहा है, लेकिन दोनों प्रोटीन काम सेम कर रहा है, दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन इन प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस। तो HLA तो सब में है, ये आइसोटाइप है, ये 3, ये 27 रिप्रेजेंट कर रहा था पॉलीमॉर्फिक टाइप। मतलब ये 27 वाले का जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस रहा होगा वो 12 वाले से अलग रहा होगा, 28 वाले से अलग होगा, 37 वाले से अलग होगा और सबसे अलग होगा। ये पॉलीमॉर्फिज्म डिनोट कर रहा है, ये 27 जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहले से पता रहना था, पॉलीमॉर्फिज्म पहले से पता रहना चाहिए। नाउ MHC1 को हम बोले HLA-A, B और 3 जीन से आता है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, 3 डोमेन है अल्फ़ा चेन का, ठीक है। तो लिख लेते हैं MHC में क्या होता है भाई, तो अल्फ़ा चेन कितना डोमेन होता है भाई, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये दो जो है ये वो साइट है जहाँ पे से पेप्टाइड जुड़ेगा और ये एक्चुअली वो साइट है जहाँ एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म होगा। मतलब ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 वाला एरिया होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है।
अल्फा 1 अल्फा 2 27 वाले में और 28 वाले में अलग होगा। अल्फा 3 पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता है, वो 27 28 29 वाले में सेम होगा। रॉबिन्स में लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो बीटा चेन है उसको कहते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन, ठीक है। जरा खोजते हैं इस पे कहाँ पे बीटा लिखा हुआ है। ये यहाँ तो किसी में बीटा 2 नहीं लिखा हुआ है, बीटा चेन तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो बीटा 2 लिखा हुआ है। असल में ये बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन का जीन यहाँ होता ही नहीं है, ठीक है। बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन जो होता है 15th क्रोमोसोम पे होता है, 15th क्रोमोसोम पे होता है, 15वां क्रोमोसोम पे होता है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता है, केवल अल्फा 1 और अल्फा 2 पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर पॉलीमॉर्फिज्म शो करके क्या इंपॉर्टेंस है? अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा तो इस वाले एरिया का अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग होने के कारण ये अलग अलग तरह के पेप्टाइड से जुड़ पाएगा। इससे एक रेंज बढ़ेगा जो कि किस किस टाइप का पेप्टाइड इस वाले से जुड़ सकता है। जैसे कि जब हम एंटीबॉडीज़ का बात करते हैं तो एक एंटीबॉडी एक ही पेप्टाइड से जुड़ता है, ठीक है, एक पेप्टाइड की एक इपीटोप से जुड़ता है, उतना भी स्पेसिफिक नहीं है। ये जो होगा एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ पेप्टाइड से, मतलब ये इस टाइप के पेप्टाइड से ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो मेरे पास तो 3 है, HLA-A है, HLA-B है, HLA-C है, 3 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये सेल है और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर, ठीक है। ये तो एक क्रोमोसोम दिखाया है, हम लोग में तो 2 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो एक ले लेते हैं मम्मी का क्रोमोसोम, एक ले लेते हैं पापा का क्रोमोसोम। ये मम्मी का क्रोमोसोम में, ये पापा का क्रोमोसोम, दैट। ये ले लेते हैं ABC, यहाँ भी ले लेते हैं ABC। मान लेते हैं ये था 1 2 3 4 5 6, ये क्या नंबर लिखें, ये पॉलीमॉर्फिक टाइप लिखें, ये मान लो मेरा है। तो ये A वाला जो होगा एक टाइप का MHC1 बनाएगा, MHC1 किसी एक प्रकार का बनाएगा। अच्छा, इसको HLA लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा प्रिसाइज रहेगा, HLA-A1, ठीक है। उसी प्रकार तो ये 6 तरह का बन जाएगा भाई। 6 तरह का बनने का क्या इंपॉर्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A1 A2 A4 था, सॉरी A4, B2 है, B5 है, C3 है और C6 है, इतना है। अब हम बोलें कि ये जो A था उसका ये जो पेप्टाइड बाइंडिंग साइट था वो एक रेंज से जुड़ सकता है, मतलब इस पेप्टाइड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कई सारे पेप्टाइड से जुड़ सकता है, ठीक है। तो मान लो कि ये मतलब मानने के लिए ये फिक्स नहीं है, मान लो कि ये 100 प्रकार का पेप्टाइड से जुड़ सकता है, ये अगला किसी 100 प्रकार का पेप्टाइड से जुड़ सकता है, ये और किसी प्रकार का और किसी प्रकार का। तो इससे एक रेंज मिलता है पेप्टाइड का, जिस पेप्टाइड से ये जुड़ के रिप्रेजेंट कर सकता है। सो लार्ज नंबर ऑफ पेप्टाइड कैन नाउ बी रिप्रेजेंटेड। क्योंकि सवाल ये उठता था ना कि मेरे पास जब बी सेल होता है तो बी सेल जो एंटीबॉडी बनाता है उसमें ठीक है, उसमें ये वाला पार्ट किसी स्पेसिफिक एंटीजन से जुड़ता है, लेकिन ये बी सेल तो मिलियन एंड बिलियन टाइप का एंटीबॉडी बनाता है। मिलियंस एंड बिलियंस टाइप का एंटीबॉडी बनता है तो मिलियंस एंड बिलियन टाइप का पेप्टाइड बाइंड होता है। यहाँ हम लोग का एक ही प्रकार का MHC कैसे सारे पेप्टाइड को रिप्रेजेंट कर सकता है भाई? एक प्रकार का नहीं होता है, ऐसे पॉलीमॉर्फिक टाइप होता है, ठीक है। और ये एक रेंज जो है उस पेप्टाइड के एक रेंज से जुड़ता है, मतलब ये इस टाइप का पेप्टाइड से जुड़ पाता है, ठीक है। तो 6 आइसोटाइप होना और मल्टीपल पॉलीमॉर्फिक टाइप होना इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि ये कई प्रकार के पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करवा पा रहा है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये HLA-A का है जो कि MHC1 के लिए कोड कर रहा है। अब आते हैं MHC2 पे, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये किस जीन द्वारा है भाई? DP DQ क्या क्या लिखा हुआ है, इजी है याद रखना, HLA D डाई 2 है, डाई D PQR, जैसे यहाँ लिखते थे ABC, यहाँ लिखेंगे PQR, ठीक है। फिर से वही हालात है, HLA-DP17 लिखे। अब आप बताइए कौन क्या लिखे हैं? HLA जीन है, DP आइसोटाइप है,
17 पॉलीमॉर्फिक टाइप है। HLA जीन मेरे में भी आप में भी है, HLA DP आइसोटाइप मेरे में भी आप में भी है, लेकिन HLA वाला ये जो 17 पॉलीमॉर्फिक टाइप है मेरे आप में अलग है। इसी कारण मेरा किडनी आप में नहीं लग रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसका जीन देखेंगे तो ये इससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें अल्फ़ा बीटा 2 है, ठीक है, इसमें 3 बीटा दिख रहा है, 1 अल्फ़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप मतलब ज़्यादा पढ़े तो देख सकते हैं ये चीज़। ये अल्फ़ा और बीटा वाला जो ये 2 दिख रहा है ना, ये दो इसको कहा जाता है, इसको सीडो जीन कहा जाता है। ये अल्फ़ा और बीटा रिप्रेजेंट नहीं होता है, होता केवल ये दोनों है। उसी प्रकार ये दोनों केवल अल्फ़ा बीटा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें था ना ABC, तो अब इसमें क्या हो रहा था, MHC1 वाले में यहाँ अल्फ़ा वाला था और हम बोले थे MHC1 वाले में बीटा वाला तो 15वां क्रोमोसोम पे था, यहाँ नहीं था, तो वो यहाँ दिखेगा भी नहीं। ये लो, यहाँ हम बना दिए क्रोमोसोम नंबर 15, यहाँ हम दिखा दिए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन MHC1 वाला। ठीक है, लेकिन MHC2 वाले में जो अल्फा चेन है बीटा चेन है, दोनों का दोनों इसी क्रोमोसोम पे है। ठीक है, MHC1 बनाने के लिए हमको 6ठा क्रोमोसोम और 15वां क्रोमोसोम पे जाना पड़ेगा, लेकिन MHC2 बनाने के लिए अल्फा बीटा इसी पे है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अल्फा मान लेते हैं DP में ये वाला दोनों सीडो जीन कहलाता है, ये एक्टिवेटेड नहीं होता है, केवल ये दोनों रिप्रेजेंट होता है। सीडो जीन वो होता है जो कि इवोल्यूशनरी आते आते वो सप्रेस हो गया, उसके लिए कोई दूसरा रिप्रेजेंट होने लगा है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें आज 6 रिप्रेजेंट किए थे ना, उसी प्रकार हम इसमें भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये मम्मी का जीन है, पापा का जीन है, 1 2 3 4 5 6 एक सेल बना देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे DP1 DP4 आप समझ गए क्या करना है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा। जब इसी चैनल पे ऑटो इम्यूनिटी पढ़ाया जाएगा, पता नहीं कौन सर पढ़ाएंगे, लेकिन जब ऑटो इम्यूनिटी पढ़ाया जाएगा ना, तो उस जगह पर ये HLA का इंपॉर्टेंस आ जाएगा। ऑटो इम्यूनिटी में बताया जाएगा ना कि कुछ जेनेटिक बेसिस होता है जिसमें ऑटो इम्यून डिजीजेज ज़्यादा होता है। वो जो हम यहाँ लिखे थे ना HLA-B27, और वीडियो बैक करके देखना बोले थे, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये HLA-B27 लिटरली इंपॉर्टेंट है, HLA-B27 लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा गया है कि HLA-B27 जिसमें होता है उसमें एनकाइलोसिस स्पॉन्डोलाइटिस होता है, एनकाइलोसिस स्पॉन्डोलाइटिस होता है। एनकाइलोसिस स्पॉन्डोलाइटिस में ना बोन डिफॉर्म हो जाता है, वो ऑटो इम्यून वाले में बताया जाएगा। ये HLA-B27 के होने से होता है। मान लेते हैं कि एक आदमी में अगर HLA-B27 है तो ये ज़्यादा ससेप्टेबल है एनकाइलोसिस स्पॉन्डोलाइटिस को लेकर, लेकिन डेफिनेटिव नहीं है कि एनकाइलोसिस स्पॉन्डोलाइटिस होगा ही, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे में HLA-B27 तो एनकाइलोसिस स्पॉन्डोलाइटिस इट इज़ लाइक लिखित है कि होके ही रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये दूसरा चीज़, हम लोग ऐसा कहते हैं क्या कि इस आदमी का इम्यूनिटी अच्छा है, ये जल्दी इम्यूनिटी डेवलप कर ले रहा है, तो ये भी तो है कि हर आदमी में तो पॉलीमॉर्फिक टाइप अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि किसी आदमी में वो जो पॉलीमॉर्फिक टाइप था वो ऐसा था कि एक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा इफिशिएंट था, तो ज़्यादा जल्दी इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो ये तो पॉलीमॉर्फिक टाइप का उसका भी इंपॉर्टेंस समझ में आया। मान लेते हैं कि ये एक आदमी है और ये दूसरा है, ठीक है, और इसके पास HLA एक्सोजीनस एंटीजन के लिए ले रहे हैं तो DP ले लेते हैं, DP2 है, और इसके पास HLA DP3 है। ये HLA DP2 जो MHC बनाता था ना, वो इस माइक्रोब को इफिशिएंटली रिप्रेजेंट करा रहा है, इस माइक्रोब को इफिशिएंटली रिप्रेजेंट करा रहा है। ये इफिशिएंट है, लेकिन ये उतना इफिशिएंट नहीं है भाई साहब, ये उतना नहीं है। ठीक है, इजीली रिप्रेजेंट होगा तो ज़्यादा इम्यून होगा। कुछ प्लस पॉइंट मिला, अभी एक निगेटिव पॉइंट गिना देते हैं। मान लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, इसके पास HLA DP, मान लेते हैं कुछ भी नंबर दे दो, रैपिड फायर ऐसे कुछ भी दे दो यार, HLA DP6 है। अब इस आदमी में जो HLA DP5 है
ये बस कहने का, ऐसा ज़रूरी नहीं कि HLA, ये जो हम HLA-B27 बोले थे, दिस इज़ डेफिनेटिव, ये होता है। ये बाकी सारा नंबर जो ये DP2, 3, 5 दे रहे हैं, रैंडम बस दिमाग से सोच कर दे रहा है, ठीक है। ये जो HLA-DP5 होगा, मान लेते हैं ये HLA-DP5 पॉलन के एंटीजन को इजीली बाइंड करके रिप्रेजेंट कर देता है, तो इस व्यक्ति में पॉलन एलर्जी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये तो एलर्जी में बढ़ावा देने लगा। तो अब एक जेनेटिक बेसिस समझ में आएगा क्यों कुछ लोग जो है वो एक पार्टिकुलर एलर्जी को लेकर ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, कुछ लोग एक एलर्जी को लेकर कम ससेप्टेबल हैं। उसका एक पहलू ये है, इम्यूनिटी अच्छा होना खराब होने का एक पहलू ये है, पहलू बहुत सारे हैं लेकिन एक ये है। और ये एलर्जी को लेकर ज़्यादा ससेप्टेबल बना रहा है। एलर्जी के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एटोपी। एटोपी मीन्स genetic predisposition to a particular allergy. I think this much discussion on the major histocompatibility complex aka human leukocyte antigen is enough, and the video got really long, and thank you.